Hello and welcome everyone. In this video lecture, we are going to discuss about a very basic topic of pharmaceutics, that is dosage form. So my dear students, before going into the chapter, let us first know what actually are dose, what are dosage and what is dosage form. इतना तो श्योर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सिंपल टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होता या फिर मालूम होने से भी कंफ्यूज रहता है। थर्ड ईयर के बच्चों को पूछो या फोर्थ ईयर के बच्चों को पूछो, ज्यादातर बता नहीं पाते कि व्हाट एक्चुअली दिस एक्चुअली मींस। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो डोज का क्या मतलब होता है? सुनने में लगभग सेम है, डोजेज फॉर्म है कि नहीं? सो डोज का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज योर डोज। मतलब एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग कितना अमाउंट ऑफ ड्रग खा रहे हैं, दैट इज योर डोज। एंड डोजेज का मतलब होता है कि कितना डोजेस मतलब कितने मर्तबा लेना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्राइप टैबलेट है, ठीक है। से वी हैव स्ट्राइप, डॉक्टर ने हमें बोला है दिस एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो हमारे पास ये हो गया 6 टैबलेट, ठीक है। सो आप एक टाइम पे डॉक्टर ने बोला है आपको सुबह को एक टैबलेट खाना है, शाम को एक टैबलेट खाना है, कंटिन्यू करना है 3 डेज के लिए। So dose का मतलब ये होता है कि at one point of time how much amount of drug we will consume. So this one tablet that you will be consuming as a patient, that you will be consuming at one point of time is your dose. ठीक है? That means the amount of drug that I as a patient is consuming at a particular time. So that is your dose. And dosage का मतलब ये होता है कि ये एक डोज में दिन में कितना मर्तबा ले रहा हूँ। जैसे दिन में 2 बार खाना है, so after every 12 hours, one 500 mg tablet after every 12 hours. So that will be your dosage regimen or dosage. And the last one, that is your dosage form. So dosage form basically means the form or the state of the pharmaceutical product. Okay, अभी जैसे ये वाला टेबलेट का अगर बात करें, टेबलेट इज इन सॉलिड स्टेट एंड सो द डोजेज फॉर्म हियर विल बी योर सॉलिड डोजेज फॉर्म। सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कफ सिरप ले लेते हैं, आप सबने खाया ही होगा, you all know, right? So it is in liquid state, so the dosage form will be your liquid dosage form. And if the doctor asks you, say you often get a cap at the top of the cough syrup bottle, right? So it's mentioned like if the doctor asks you to consume 5 ml every 3 times a day, 5 ml 3 times a day of the cough syrup. So this 5 ml will be your dose, this 5 ml that you are consuming at a point of time, and you will be consuming 3 times a day. 5 ml 3 times a day, that is your dosage. And dosage form, since cough syrup is in liquid state, so the dosage form will be your liquid dosage form. So after that, let us know what actually a drug and what is excipients. So and then we will move into dosage form. Okay. So my dear students, drug is that agent, okay, वो substance that we use for it may be for diagnosis, it may be for mitigation, it may be for cure of the disease, or it can be for the prevention of any kind of disease. So any substance we use for those purposes is called as drug, or also known as active pharmaceutical ingredient, API. So आपको बहुत बार ये टर्म दिखेगा, API, active pharmaceutical ingredients, that ingredient that is responsible for the therapeutic effect. And उस डोज एक ड्रग के साथ जो जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड करते हैं, जैसे अभी कफ सिरप जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, सो उसमें ड्रग थोड़ा अमाउंट में रहता है, उसके साथ जैसे आपका सिरप हो गया, सिंपल सिरप, इट मे बी योर सुक्रोज सॉल्यूशन और एनी अदर काइंड ऑफ शुगर सॉल्यूशन that we add. Along with that, if we add any kind of flavoring agent or any coloring agent, so all those ingredients that we add along with the drug to prepare a dosage form. Okay, it can be your solid dosage form, it can be your liquid dosage form. So all those substances are called your excipients. मतलब कि अभी जैसे एक टेबलेट बनाना है, सो आपका कोई भी ड्रग ले लीजिए, एस्पिरिन की, ठीक है। सो एस्पिरिन के साथ में अगर मैं कोई बाइंडर ऐड कर रहा हूँ या फिर कोई डाइल्यूएंट ऐड कर रहा हूँ, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड कर रहा हूँ, सो ऑल दोस सब्सटेंसेस which does not have any kind of therapeutic effect but is essential for preparing the dosage form. So those substances are your excipients. Okay, so so इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तब हमारा बनेगा dosage form. So drug and excipients together give us the dosage form. So अब dosage form हमें समझ में आ गया कि क्या होता है डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जैसे कफ सिरप हो गया, सॉलिड डोजेज फॉर्म टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, एंड उसके अलावा सेमी सॉलिड होता है आपका जैसे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स हो गया, ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर डोजेज फॉर्म, व्हाई कांट वी डायरेक्टली take the drug instead of adding excipients.
since we are discussing about this, there should be some advantages. Let us now look into why we need dosage form. So what are the various advantages of dosage form? Let us have a look into that. So first one, as you can see, to protect the drug from oxidation, hydrolysis and reduction. So my dear students, if we prepare a dosage form, say for example coated tablets or a sealed ampule, okay, so in such cases, if any drug which is prone to oxidation or hydrolysis or reduction, that can be prevented by the preparation of dosage form, by doing some coating of the tablets, for example. Okay, second thing is to protect acid labile drugs. So you have heard about enteric coated tablets, where if the drug is degraded by the acid in the stomach, okay, in such cases we can do coating of the tablet, so that the tablet will only, the layer will get degraded only when it reaches the intestine. So enteric coated tablets are designed in such a way that the formulation will release the drug only when it reaches the intestine. So the next one is your accuracy of dose. So accuracy of dose can be obtained by dosage form. अभी अगर हमें एक raw drug दे दिया, API दे दिया जाता है powder form में, so if the doctor asks you to consume 10 mg of the drug every 3 hours a day or every 12 hours a day, okay, so it will be very inconvenient to measure that amount and consume. However, if that 10 mg of the drug is utilized to prepare a tablet, okay, so it will be very convenient for me as a patient, or for even someone younger to me or adult to me, okay. Why? See, आप एक टैबलेट आराम से निकाल के खा सकते हो, अगर वहाँ पे लिखा होगा कि 10 mg टैबलेट है, तो आप आराम से निकाल के खा सकते हो, क्योंकि उस टैबलेट को एक्सिपिएंट्स ऐड करके एक सफिशिएंट साइज, हैंडलेबल साइज बना दिया जाता है. So it becomes easier to handle the drug, as well as accuracy of the dose can be obtained or achieved. Next one is optimum drug action. So optimum drug action can also be achieved by suitable dosage form. For example, there are drugs which when taken directly, okay, without any excipients, will be lost in the first pass metabolism. So which, however, by the application of various dosage form, can bypass the first pass effect and we can get better results. So optimum result can be obtained by suitable dosage form. Extended release medication. Extended release medications like your sustained release dosage form or your control release dosage form can be designed so that we can get the desired effect for a longer duration without having to consume it very frequently. So that can be achieved by suitable dosage form. That can be your control release, sustained release. Insertion of drugs into body cavities. Like for example, we can prepare tablets or suppositories for inserting the tablets in various body cavities like your vagina or your rectum. So this dosage form can be easily designed in such a way that it can be easily administered in the body cavities. Okay. उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज. अभी जैसे इंजेक्टेबल्स हो गया, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, सो वो इंजेक्टेबल्स हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी कैविटीज, बॉडी टिश्यूज में, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी टिश्यूज to mask the bitter, obnoxious taste and odor. So one of the very important advantages of dosage form is that we can mask any kind of drug. Most of the drugs are bitter in taste or have bad smell, okay. So this can be covered by doing proper sugar coating or any kind of coating. Apart from that, we can use some kind of syrup or flavoring agent, so that we can prepare a suitable dosage form which will be convenient for the patient to consume any kind of medication. So these are some of the various advantages. उसके अलावा और भी बहुत सारे advantages हैं. So these are some of the important advantages that you need to remember from why we need dosage form. Let us now move into the different classification of dosage form. So dosage form को आपका basically 4 category में divide किया गया है. आपका solid dosage form based on the state of the dosage form, okay, pharmaceutical dosage form. So solid dosage form, then liquid dosage form, then your semi-solid dosage form, and gaseous dosage form. So let us now look into one by one in detail. So पहला कैटेगरी है आपका solid dosage form. तो solid dosage form को फिर से सब कैटेगराइज किया गया है आपका यूनिट डोजेज फॉर्म एंड बल्क डोजेज फॉर्म. अब यूनिट डोजेज फॉर्म क्या होता है? आपका जो डोजेज फॉर्म आपका एक इंडिविजुअल डोज के हिसाब से अवेलेबल रहता है, इंडिविजुअल डोज, ओके. लाइक फॉर एग्जांपल टैबलेट में क्या होता है, हम लोग को जो एक टाइम पे खाना होता है, दैट इज योर डोज. सिंगल डोज इज अवेलेबल एज इंडिविजुअल डोज, राइट, 1 टैबलेट एट अ टाइम. सो इट इज ऑलरेडी सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजेस. दैट इज योर यूनिक डोजेज फॉर्म, मतलब एक डोज एक अलग अलग से रहता है. अभी जो बल्क डोजेज होता है उसमें आपका क्या होता है, मल्टीपल डोजेस एक साथ रहता है. जैसे आपका
डस्टिंग पाउडर हो गया, जो आप देख सकते हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर। उसमें क्या होता है आपका, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक कैंडिड पाउडर का बोतल जो होता है एक ही बार में अप्लाई कर देते हैं कि नहीं, एक बार अप्लाई किया फिर रख दिया, फिर से अप्लाई किया, सो इट कंटिन्यूस राइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो दैट इज योर मल्टीपल डोजेस कंबाइंड टुगेदर अंडर द कैटेगरी बल्क। सो यूनिट डोजेज फॉर्म में और भी कई एग्जांपल है, जैसे आपका कैप्सूल्स हो गया, पील्स हो गया एंड पाउडर्स। सो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स को बेसिकली हमने देखा ही होगा। पील्स मतलब क्या होता है आपका, जो स्मॉल राउंडेड टैबलेट्स होता है उसको हम लोग पील्स बोलते हैं। स्मॉल राउंडेड टैबलेट्स आर कॉल्ड नोन एज पील्स। उसके अलावा आपका पाउडर्स, यूनिट डोजेज फॉर्म में पाउडर्स कैसे आता है, मतलब आपका कुछ पाउडर्स डोजेज फॉर्म जो होता है इंडिविजुअल डोज के हिसाब से छोटा छोटा पाउच या फिर पैकेट में आता है। सो या फिर सैशे और कैचेट्स से, ओके। सो वैसे फॉर्म में आपका मिल जाता है पाउडर्स। सो दो साइड योर यूनिट डोजेज फॉर्म। गोइंग टू द बल्क कैटेगरी, इंटरनल डोजेज फॉर्म, मतलब जो सॉलिड डोजेज फॉर्म हम लोग इंटरनली कंज्यूम करते हैं या फिर इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर जाता है। जैसे आपका हो गया फाइन पाउडर्स, ओके। फॉर एग्जांपल पाउडर्स फॉर इंजेक्शन। सबका पाउडर्स फॉर इंजेक्शन आपने देखा होगा कि एम्प्यूल्स में पाउडर रहता है और दूसरा एक एम्प्यूल्स में कोई लिक्विड रहता है, जो आपका डॉक्टर या फिजिशियन इंजेक्ट करने से पहले वो वाला जो लिक्विड है, लिक्विड को इंजेक्शन के ज़रिए उस दूसरा एम्प्यूल में जिसमें पाउडर्स है उसको मिक्स करके अच्छे से एंड देन इंजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर फाइन पाउडर्स, ओके, पाउडर फॉर इंजेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेन्यूल्स एंड इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आर देयर। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है आपका, जो मल्टीपल पार्टिकल्स जब बाइंड होता है एक साथ तो आपका ग्रेन्यूल्स फॉर्म करता है। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का मतलब है जो ग्रेन्यूल्स आपका पानी में डालने के बाद आपका बुलबुला छोड़ता है, मतलब बबल्स छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इनो, आप सबको मालूम होगा इनो जब हम लोग पानी में डालते हैं क्या होता है, देयर आर सम बबल्स कमिंग आउट, राइट, एंड दैट बबल्स इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्या होता है आपका जो मेडिकामेंट रहता है इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में, मेडिकामेंट के अलावा आपका टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड and bicarbonates are there, okay. These bicarbonates and the other acids react together in presence of water and they release carbon dioxide, which we see visibly as bubbles coming up. So that is basically about your internal solid dosage form under the category bulk. उसके अलावा आपका आता है एक्सटर्नल सॉलिड डोजेज फॉर्म। एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर हो गया जो कैंडिड डस्टिंग पाउडर है। उसके अलावा इंसफ्लेशंस। इंसफ्लेशंस आपका वो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होता है जो आपका बॉडी कैविटीज़ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे बॉडी कैविटीज, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ईयर्स और इवन वेजाइना। सो विद द हेल्प ऑफ, मतलब ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता है, एक एपेरेटस के जरिए अप्लाई किया जाता है जो आप देख सकते हैं। दिस इज योर insufflator, okay. This apparatus is called your insufflator, helpful in the administration of insufflations. And the last category is your dentifrices. डेंटिफ्राइसिस, डेंटिस्ट के नाम से डेंटिफ्राइसिस आया, मतलब आपका जो पाउडर्स होता है टूथ पाउडर्स, दे कम अंडर योर डेंटिफ्राइसिस। आपने यूज़ किया कि नहीं पता नहीं, बट एज अ चाइल्ड आई यूज टू यूज़ वेरी पॉपुलरली, यू नो, डबल लल दत मंजन। सो दिस आर योर डेंटिफ्राइसिस। मूविंग ऑन नेक्स्ट, लिक्विड डोजेज फॉर्म। सो लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी सब कैटेगराइज किया गया है आपका मोनोफेसिक एंड बायफेसिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, मोनो एंड फेसिक। मोनो मतलब वन एंड फेसिक मतलब फेस। सो दैट मीन्स ओनली वन फेस इज देयर इन केस ऑफ मोनोफेसिक। सो मोनोफेसिक में फिर से उसका भी कैटेगरी है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो आपका आउटसाइड सरफेस स्किन या फिर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है, जैसे आपका हो गया लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेन्स, माउथ वॉश, आई लोशन, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स। सो आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स ये सब आपने घर पे देखा ही होगा। लिनीमेंट्स एंड लोशंस ये भी आपका मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। जस्ट द डिफरेंस हियर इज दैट लिनीमेंट्स में आपका स्किन पे ही अप्लाई होता है, लेकिन फ्रिक्शन के साथ या फिर रब करके हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। जो लोशन होता है उसको हम लोग रब नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओपन वुंड्स पे हम लोग लोशन अप्लाई करते हैं। कमिंग ऑन, मूविंग ऑन नेक्स्ट इज योर गार्गल्स। गार्गल्स आपने यूज़ किया होगा। सो गार्गल्स क्या होता है आपका, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देन योर थ्रोट पेन्स, एग्जाम्पल इज योर मैंडल्स पेन। Then mouthwash for cleaning the mouth, deodorizing the mouth or preventing any kind of
mouth infection. Eye lotions that are applied to the eye drops and nasal drops are some of the example of your monophasic liquid dosage form. So an example of your liniment is your turpentine liniment. Okay. So moving on next, internal category of monophasic liquid dosage form, syrup, सिंपल सिरप रहता है आपका, मेडिकेटेड सिरप्स है, एलिक्सर्स, उसमें भी आपका एलिक्सर्स क्या होता है आपको मालूम होगा शायद. एलिक्सर्स आर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन. यूजुअली मतलब उसमें कलर ऐड क्या रहता है, द मेन कंपोनेंट्स आर योर इथाइल अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन. उसके अलावा उसमें आपका मेडिकेटेड चीज़ें जैसे आपका एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीहिस्टामिन्स हो गया, ये सब आपका ऐड किया रहता है एलिक्सर्स में. एंड लिंक्टस, जैसे आपका कोडीन लिंक्टस हो गया, बेसिकली सिमिलर टू योर कफ सिरप्स. ओके. एंड देन ड्रॉप्स फॉर इंटरनल, मतलब हमारा बॉडी के अंदर जा रहा है, जैसे आपका पोलियो ड्रॉप्स हो गया. सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ योर मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. मूविंग ऑन टू द बायफेसिक मतलब उसमें भी दो टर्म्स है आपका, बाय एंड फेसिक. बाय मतलब टू एंड फेसिक मतलब फेस. ओके. सो दिस फॉर्मुलेशंस विल हैव टू फेसेस. जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आपका इमल्शन एंड सस्पेंशन. इमल्शन क्या होता है, if you add oil, you can do it in the home also, like take little amount of oil, mustard oil, and add it in water. You will see that they do not mix, they remain a separate layer. Okay, so there are two phases. If they happen to mix completely, if we can see only one layer, then it will be your monophasic. But since oil and water phase do not mix, so they are biphasic. Okay, and the category is your emulsion. Example is your Easylex, that is available in the market. Liquid paraffin and milk of magnesia, oral emulsion. The next one is your suspension. Suspension is also biphasic. Just the difference between emulsion and suspension is that emulsion में आपका दोनों फेस जो होता है लिक्विड है, जस्ट एक ऑयली है एक एक्वस है. लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, आपका सॉलिड होता है एक और एक होता है लिक्विड. जो सॉलिड होता है उसको हम लोग डिस्पर्स फेस बोलते हैं, एंड जो आपका लिक्विड होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फेस बोलते हैं. सो सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूअस लिक्विड फेस, दैट इज योर सस्पेंशन. एग्जाम्पल इज योर एंटासिड, यू माइट हैव सीन, जिसमें आपका सॉलिड पार्टिकल्स रहता है जो सेटल हो जाता है. इसलिए क्या लिखा रहता है आपका एंटासिड में, शेक वेल बिफोर यूज, ताकि जो आपका सॉलिड पार्टिकल सेटल हो गया उसको अच्छे से रीडिस्पर्स करके हम लोग कंज्यूम करें. सो दैट इज बेसिकली अबाउट योर लिक्विड डोजेज फॉर्म. हम लोग एवरी इंडिविजुअल फॉर्मुलेशन, ओके, लाइक लिनिमेंट्स, लोशंस, ये सब हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. सो आई एम नॉट इलेबोरेटिंग मच. मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. आपका जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, दे आर इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉलिड, नॉट कम्प्लीटली लिक्विड. जैसे आपका घर पे होगा, बॉयज यू माइट नो व्हेन यू अप्लाई जेल, राइट, और गर्ल्स यू माइट नो creams, beauty creams are there और many other. So सेमी सॉलिड का भी आपका दो कैटेगरी रहता है, आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में आपका आ जाता है सपोसिटोरीज एंड पेसरीज. सो दिस आर समथिंग माइट बी न्यू फॉर यू. तो सपोसिटोरीज क्या होता है आपका, ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो आपका बॉडी कैविटीज में इंसर्ट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम माउथ. मतलब जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बॉडी कैविटीज में अप्लाई किया जाता है, सिर्फ माउथ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, वो आपका हो जाता है सपोसिटोरीज. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका रेक्टल सपोसिटोरीज हो गया, वेजाइनल सपोसिटोरीज हो गया, फिर नेजल सपोसिटोरीज आर देयर, इवन सपोसिटोरीज फॉर ईयर्स आर अवेलेबल. ओके, ईयर कोन्स. सो दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द कैविटी ऑन विच दे आर टू बी एडमिनिस्टर्ड. सो दैट इज अबाउट सपोसिटोरीज. पेसरीज, these are also kind of suppositories only, which are specifically inserted into the vagina. Okay, they are meant for insertion into the vagina, and they are also semi-solid dosage form. The principle behind your suppositories and pessaries is that इसमें आपका क्या होता है, एक बेस यूज किया जाता है. जो बेस आपका नॉर्मली इंटैक्ट रहता है आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, लेकिन एज सुन एज दे आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटीज, उसमें क्या होता है आपका उनको बॉडी का टेम्परेचर मिलता है, एंड एज सुन एज द बेस रीचेस द बॉडी टेम्परेचर दे स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड दे रिलीज द मेडिकामेंट्स. So that is the basic principle behind your suppositories and pessaries. So semi-solid bases are used in the preparation of your suppositories and pessaries. Coming to the external semi-solid dosage form, उसमें आपका आता है ointments, creams, paste and jellies. Providine iodine ointment,
वो घर में कॉमनली अवेलेबल रहता है, तो वो आपका ऑइंटमेंट हो गया। क्रीम के तौर पे जो आपका कोई भी मेडिकेटेड क्रीम हो गया, पेस्ट एंड जेलीज, these are all semi-solid dosage form and these are applied on the skin, okay, or mucous membrane, basically outside. So they are categorized as external semi-solid dosage form. The last category is your gaseous dosage form, जो आपका gaseous form में यूज किया जाता है। आपने यूज किया होगा Volini spray, right? Spray is there and then you might have seen in at home or somewhere in TVs, right, in serials or movies, patient using asthmatic inhalers. So वो आपका हो गया। फिर aerosols हो गया। So these are some of the examples of gaseous dosage form. So I hope you have understood basically what are the different types of dosage form, and we'll be discussing about each individually in subsequent lectures. So with this I'd like to conclude this lecture. If you have any queries, please put down your queries in the comment section. I'll definitely come up with your solution.